हे वाहिगुरु। मुझे नहीं पता था अमृत छकने के बाद झूठ भी बोलना पड़ता है करके। एक झूठा बंदा जिसका पूरा पर्दाफाश करने जा रहा वाहिगुरु एक वीडियो से वाहिगुरु। बरजिंदर सिंह परवाना उस विधवा औरत दे नाल इन्होंने फ्लैट कब्जा करने की कोशिश की थी, जे इन्होंने कोई जवाब मंगया, कोई जवाब नहीं है। जवाब संगत के बीच में वाहिगुरु। जो वो फ्लैट में थी ना, वो बेटी मेरे पास है वाहिगुरु। वो बेटी संगत को शेयर करेंगे वाहिगुरु रियलिटी क्या है। और हाँ, अंधभक्त ना बनो वाहिगुरु, सच को सुनो। ये ना सोचो कि मैं बाहर का हूं या अपना गुरसिक है या पंजाबी है, ये ना सोचो। रिलीजन मैटर नहीं करता वाहिगुरु, इंसानियत मैटर करता है। अब सुनो, नाम रूही वाहिगुरु गजेंगे, बोलो। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ एक चीज दसना चाहनी है कि कल का एक बहुत ज्यादा मैटर बरजिंदर सिंह परवाना जी ने अपने उत्ते कर रखा है कि हाँ एक कुड़ी ने कब्जा किया, विक्की थॉमस ते मैं इन्हां नूं सपोर्ट किया या इन्हां ने उहदे तो कब्जा कराया। सो मैं उस चीज नूं पूरे मैटर नूं अज इत्थे क्लीयर करना चाहनी है कि वो मैटर की सी ते कित्थों शुरुआत हुई सी। फॉर द टाइमिंग मैं सितंबर च इन्हां दे घर रहन आई सी एज जो विधवा नूं ज्यादा सिंपैथी दे रहे ने। वो विधवा के घर मैं सितंबर च रहन आई सी। सो कुछ चीज़ां उन्होंने नहीं पूरियां कीतियां जिहदे करके मैं उन्हां दा रेंट रोकिया। ਜਦੋਂ तक पूरा करदी सी उदों तक उन्होंने कोई मेरे तो प्रॉब्लम नहीं सी। हाँ, जिस दिन मैं रोकिया उस दिन प्रॉब्लम होगी। ते जदों मेरा उस विधवा नाल आ सॉर्ट हो गया कि तुसी मेरी सिक्योरिटी एडजस्ट करो, मैं तुहाडे कोल नहीं रहना, ते एज अ प्रूफ मेरे को हैगा, जे तुसी कहंदे हो मैं सुना दिन्नी है कि किन्नी तरीक नूं मैं उन्हां नूं जवाब दित्ता कि मैं तुहाडे कोल नहीं रहना। 21 दिसंबर 2024 ਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਰੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਉਹ ਫਲੈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਲੈਟ ਹੈ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹ ਫਲੈਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਭੇਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ 27,500, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ? ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-11 ਮਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੂਫ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੀ ਗੂਗਲ? और मैनू दसो ना तुसी कौन हो? मेरी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन है। मैं जो भी अपनी उम्मीद रखा, चाहे मैं कुछ भी सॉर्ट करा, वो मैं पुलिस स्टेशन प्रशासन तो हेल्प लवांगी। परवाना जी ने मैंने धमकियां दित्तियां। ईवन इन्होंने आए 16 तरीक में पुलिस स्टेशन, उत्थे बैठे, उत्थे ਐਵੇਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿਵਾਓ, ਐਦਾਂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫਲੈਟ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਆਪਦੇ 25-30 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਧਰੋਂ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ 3 ਬੰਦੇ, ਉਧਰੋਂ 25-30 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ? ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ? ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ? ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਲੈਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੈਟਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਐਸਐਚਓ ਸਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ
ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਨ ਹੈਂਡ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਜ਼ ਦਵਾਂਗੀ, ਵਨ ਹੈਂਡ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਟਨ ਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ भी इन चीजों के जवाब। और कब्जा होने के बाद 20,000 रुपए कैश। और कब्जा होने के बाद 20,000 रुपए कैश दे रहे मेरी सिक्योरिटी। हाँ। वो क्यों देते हैं मेरे को सिक्योरिटी? और 5 महीने किसी ने मेरे ऊपर डबल या इसको क्रॉस कहते हैं कंप्लेंट नहीं करी, उन्होंने कोई एविडेंस पेश नहीं करा, उन्होंने कुछ पेश नहीं करा क्योंकि उनकी गलती थी, मेरे को हॉस्टेज बना के रखा है। और इन्होंने जो कैमरास घर पे लगाए थे उसका असेस इनके पास था, इनके फोन पे चल रहे हैं, 4 महीने से कैमरे इनके पास फोन पे चल रहे थे, इनके पास तो मेरे सारे प्रूफ थे, एटलीस्ट एविडेंस पेश करते। इनके ही थर्ड पार्टी के बंदे ने मेरे को उसी घर में बाहर से कुंडा लगा के अकेली लड़की को हॉस्टेज बना दिया। उस चीज का अभी तक पुलिस स्टेशन में एविडेंस कोई भी पेश नहीं है। क्यों नहीं है? जब एविडेंस पेश करने को बोल लो तो वो चीज को करते ही नहीं एविडेंस पेश, क्योंकि उनको पता है वो वहां पे गलत है। तभी तो उन्होंने एंड ऑफ द मोमेंट 5 महीने बाद भी अगर ये चीज क्लोज हुई है तो कॉम्प्रोमाइज मेरे हक में इसीलिए आया है क्योंकि मैं सही थी वहां पे। ये किसी को भी नहीं पता, ये परवाना जी को भी नहीं पता। परवाना जी एक शोर मचाई जा रहे हैं, विधवा 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 विधवा। अगर थर्ड पार्टी मेरे पे भेज सकती है लड़के तो विधवा बहुत कुछ कर सकती है। विधवा दे के आजकल किसी की आप सिंपैथी गेन नहीं कर सकते हो। मैं भी अकेली लड़की हूं अपने घर वालों की, मैं भी अकेली लड़की हूँ, मैं भी अकेली रह रही थी। एक अकेली लड़की पे किसी का हाथ पड़े किसी लड़के का वो ठीक है, पर एक विधवा के साथ कुछ नहीं कोई कर सकता। विधवा का तो वो घर ही नहीं है। क्या मैटर उछाल रखा कि विधवा 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 दे के और बुजुर्ग कह के मेरे से कोई सिंपैथी ना गेन करे प्लीज। आजकल विधवा ही है जो सबसे ज्यादा कांड करती हैं। सो ये मत बोलो इनके पास एविडेंस रिकॉर्ड है, कहते हो तो मैं और भी प्रूफ दे सकती हूँ जिसपे विधवा ने मेरे को गालियां दी थी, विधवा ने मेरे ऊपर थर्ड पार्टी लड़के भेजे थे, विधवा ने इवन ट्राई टू कि हाँ मेरे साथ लड़के गलत करें, ये विधवा ने ही करवाया था। ये परवाना जी को पता होना चाहिए वो विधवा क्या करती है, ये परवाना जी को उनसे पूछना चाहिए। मैं आज सवाल करती हूँ कि परवाना जी मेरे को कहते हैं मेरे को गूगल करो। क्यों करूं इनको गूगल, क्यों करूं मैं? और मैंने उनको क्यों, मेरी जवाबदेही सिर्फ मैंने जहां पुलिस में कंप्लेंट करी है मैं उनको आंसरेबल हूं, मैं इनको आंसर क्यों दूं? मैंने कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दी थी, परवाना जी को नहीं दी थी। और ये तो सीधा सीधा मेरे को टारगेट बना रहे हैं, ये मेरे मैटर को टारगेट बना रहे हैं। मेन प्रॉब्लम ये है कि दमदमी टकसाल के संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वाले वैगरू एक बेटी की हिफाजत के लिए उन्होंने एक वचन दिया था, जो मैंने सुना है वीडियो में, जो मैंने सुना है, बेटी को तकलीफ नहीं करना चाहिए, जो चाहिए माया लेके जाना। वो बेटी भी शायद हिंदू थी, तो वही बोलने का मतलब ये है ना कि बेटी का हिफाजत ही खालसा पंथ का फर्ज है। और तू जो कमीशन खाना चाहता था ना, जो विधवा विधवा जो तू बोल रहा है, तेरे को मालूम ही नहीं कि ये लेटर आया, इन्होंने पूरा हो गया, सेटलमेंट पूरा हो गया। तो उसके बाद मैं रक्तदान करने गया राजपुरा अकेला, फिर तेरे को एक बार पैदा होना पड़ेगा रे, अकेला बुलेट में, अकेला मैं गया मोहाली टू राजपुरा रक्तदान करने। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है मेरा, हर 4 महीने में रक्तदान करता है मैं, जो तूने कभी किया नहीं। उसके लिए नस भी होना चाहिए, खून भी होना चाहिए, जो तेरे शरीर में है नहीं। तो वो डोनेशन के बाद तूने उस टाइम पे जो भौंका, क्या भौंका तूने, तेरे को मैं सिंह नहीं बोलूंगा वाहिगुरु जिंदगी में। तेरा जो हरकत है ना विद प्रूफ में रखा है सारा कुछ, खोल रहा हूं मैं सारा कुछ। ये पहला रिकॉर्डिंग, ये पहले तो ना करके बेजुबान को राजपुरे घूम रहे हैं। हाँ जी, वो साढ़े ना बेजुबान करके को राजपुरे बने हुए, राजपुरे इतनी नहीं, अद्धा घंटा पटियाले तुर पे मैं इतनी नहीं, जब दस्ता तू जबान किने निकली ना, तू फोन नहीं चुकिया मेरा, ना दित्ती को जवाब, इतने नहीं और तू चलो। अब इसका इतना ही रहे मैं क्यों सुनूं? बैंगन तू अकेले में मिलके बोलना कभी इतना ही रही 50 बाप को लेके आया तू, पत्थर मारा तू, ये सिंह वाला हरकत है क्या? उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं, उदाहरण के तौर पे पहली पातशाही को भी लोगों ने पत्थर मारा, तू भी वही लोग का पुनर्जन्म है। मैं अपने आप को पहली पातशाही से तुलना नहीं कर रहा है, लेकिन पहली पातशाही भी वाहिगुरु गुरु का ही अकाल पुरख रूप है वाहिगुरु, वो भी हम भी महाराज की फौज है। लेकिन तूने जो पत्थर मारा ना, वो पत्थर मारने में तेरी जात दिखाया, तेरा जात क्या है। और दूसरा रिकॉर्डिंग, जब अपन हाँ जी बोलते ना, ये फोन पे कितने व्हाट्सएप मैसेजेस हिमालय में, जितने तेरे इंस्टाग्राम में फॉलोवर है,
जिसके लिए मैं वाहिगुरु महाराज के हजूरी में, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज और संगत के बीच में कान पकड़ के क्षमा मांगूंगा मैं, लेकिन इस डेंगू के मच्छर के लिए नहीं जो मच्छर ने पत्थर मारा। पत्थर मारने के बाद ना उस बंदे को हम सिंह नहीं मानते, पत्थर कुत्ते को मारा जाता है, सुअर को मारा जाता है। और वाकई में आप, मैं इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, खाली 2 मिनट भी अगर तू मिल गया ना मेरे को, तेरे को परवाना का, तेरे को वो वर्ड नहीं पढ़ पाएगा तू, खाली 2 मिनट। तो ये जितना भी हुआ ये कंट्रोवर्सी कि कब्जा किया है, मैं एक बेटी के लिए स्टैंड लिया है, जो मैं लेता रहेगा आखिरी क्षण तक। कुछ बोलना है आपको? मैं यहाँ पे लास्ट एक चीज कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें परवाना जी और मेरी ऑलरेडी बहुत ज्यादा चल रही है 15 मई को लड़ाई। विक्की जी को भी नहीं पता था इस चीज पे, हम दोनों की बहस चल रही थी, तो मैंने उसी रात को सारा कुछ बताया था इस बारे में कि ऐसे ऐसे हो रहा है। इन लोगों ने जस्ट मेरे को हेल्प आउट करने की कोशिश करी कि पीसफुली सब कुछ हो जाए, कि कल को मैं अकेली लड़की हूँ, कोई दिक्कत ना आए, ये मेरे को धमकियां दे रहे हैं। बट अगर ये चीज ये बोल रहे हैं, ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जी ने मेरे से कब्जा कराया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे से किसी ने कब्जा नहीं कराया। कह सकते हो आप 5-4 महीने पहले की जो कंप्लेंट है मेरे पास वो चीज, उस चीज का प्रूफ है कि कितने मंथ मेरी कंप्लेंट चली है। मेरे पास जो कॉम्प्रोमाइज है, उन्होंने मेरी सिक्योरिटी वापस करी है, कॉम्प्रोमाइज है, मेरे पास सारे प्रूफ है। तो ये कैसे किसी को ब्लेम कर सकते हैं कि इन्होंने मेरे से कब्जा कराया या मैंने इनके साथ मिलके कब्जा करा? हमने किसी की प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा नहीं करा, ना इन्होंने कुछ करवाया। और मैं विकी जी को जस्ट उसी एक दिन से जानती थी। सपोर्ट करना गलत नहीं है, ठीक है। मैंने बोला था हम 19 तारीख को मैं कीज दूंगी, मेरे कहने पे इन्होंने आगे बोल दिया कि 19 तारीख को ये कीज दे देंगी, ठीक है। बट मुझे पता था ना जो मेरे ऊपर हुआ है, जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे पुलिस स्टेशन में रेशो भी तो 25-30, वो 25-30 बंदे, हम लोग 3। अगर उस दिन ये ऐसा कुछ कर देता तो ये मैटर, मैं थी इनके साथ में, मैटर बहुत ज्यादा खराब हो सकता था। तो मैंने 2 दिन का टाइम लिया। उसी 2 दिन में मेरे को एसएसपी ऑफिस बुलाया गया, क्योंकि ये मेल बहुत टाइम से मैंने ऑनलाइन डाली हुई थी। उसी 2 दिन में भगवान ने इतना साथ दिया कि मेरे को एसएसपी ऑफिस बुलाया गया। एसएसपी ऑफिस की तरफ से ही एसएचओ सर को बोला गया कि इनका मैटर सॉल्व करवाया जाए। तो ये कहां से मैटर आता है कि इन लोगों ने मेरे से कब्जा करवाया? और ऐसी कोई बात